Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to our channel where we are solving topicals for physics 0625 IGCSE. So today our topic is going to be motion. This is one of the few tricky topics that the students have a difficulty with. The speed time graph and different situations of free fall and gravity and stuff always poses a threat. But if you today you pay attention to the cases and scenarios that we are dealing with and their explanations that I am providing, and if you connect everything you've learned over here with the questions and scenarios that come in front of you, so inshallah you won't have any issues. Just pay attention and try to memorize these solutions of these scenarios and particular cases that I am providing, and inshallah you will ace this topic. ठीक है जी? So before we start, please press the subscription button and the bell icon so that you don't miss a video. And if you find this helpful, so please remember me in your prayers. Acha ji, moving forward, we have question number 1, which states that which statement about mass or weight is not correct? I don't know why we are having this question because this is about motion and not about mass and weight. But let's see. So the first option is masses can be compared using a balance. Okay. Mass is a force. This one we know is not correct because mass is not a force. Weight is a force. Weights can be compared using a balance. The weights can be compared using a balance. Yes, weight is a force. This is also correct. This is also correct. So the only one which is incorrect is option B. So that is what they were asking us, that something which is not correct. ठीक है जी? So the option would be B. Moving forward, question 2 states that there is a sphere P made up of steel and has a weight of 10 Newton on Earth. Another sphere Q, also made up of steel, has a weight of 10 Newton on Mars. The gravitational field strength on Earth is greater than the gravitational field strength on Mars. So, because of this statement, we have to identify an answer from these options. So, the mass of sphere P is the same as the mass of sphere Q. Okay. The mass of sphere P is less than mass of sphere Q. Okay. On Mars, the weight of sphere P is the same as the weight of sphere Q. On Earth, the weight of sphere Q is less than 10 newtons. अच्छा जी, इसको हम ये कहेंगे कि अच्छा ये आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. I don't know why these questions have been included in this part, but anyways, mass जो है वो it always remains the same, irrespective of the fact कि आप मार्स पे हैं, अर्थ पे हैं, वीनस पे हैं, प्लूटो पे हैं, कहीं पर भी हैं. ठीक है. Mass of the object won't change anywhere. ठीक है. एंड ये दो ऑप्शंस मैथ से रिलेटेड हैं, ये दो ऑप्शंस वेट से रिलेटेड हैं. इसको करने का ना एक अच्छा तरीका ये हो सकता है हमारे पास कि आपको पता है कि वेट और मास जो हैं वो एसोसिएटेड होते हैं विद एन इक्वेशन W इज इक्वल टू mg. ठीक है. हमें ये पता है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो अर्थ पे 9.8 होती है. ठीक है. और मार्स पे इट हैज टू बी लेस देन दिस.
तो उसको आप फॉर एग्जाम्पल जस्ट मतलब कंसिडरिंग इट लाइक दैट, जस्ट टेक इट एज 6, ठीक है, इट इज नॉट 6, लेकिन हम एक सपोजिशन कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अब हमको पता है कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं अर्थ के ऊपर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और यहाँ हम लिख लेते हैं कि मार्स के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमें वेट दोनों P और Q के पता है, ठीक है। तो अर्थ में अगर P का वेट जो है वो 10 न्यूटन्स है, तो मास हम इस तरह से फाइंड कर लेते हैं। और अक्सर जगहों पे पहले फॉर एग्जांपल 10 यूज होता था ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू। अब जो है कैम्ब्रिज ने इस वैल्यू को, अब से जो बच्चे पेपर्स देंगे, 9.8 कर दिया है। अगर हम 10 ही ले लें, जस्ट मेकिंग आवर स्टफ इजी, तो आपको पता चल जाएगा कि जी वेट जो है, मास जो है वो 1 kg आता है ऑफ द स्टील ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, ठीक है जी। और अगर हम मार्स पे जो Q है उसका मास निकालें, तो वेट हमें पता है उसका 10 है, मास हमें नहीं पता। हमने सपोज किया है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू है यहाँ पर, वो जो है वो 6 है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करने से हमारे पास आंसर जो है वो आता है 1.66। तो अब आप देख लो कि जो Q है उसका मास 1.66 है, और इस तरह की सिचुएशन में P का मास जो है वो 1 kg है। तो आपके पास फिर जो B ऑप्शन है, that would be correct, that the mass of sphere P is less than the mass of sphere Q। आप एक सिनेरियो एस्टैब्लिश कर लें और उससे अपने आंसर्स निकाल लें, तो ये वाले क्वेश्चंस करना आसान हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यू जस्ट डोंट हैव एनी आइडिया कि क्यू का वेट कम होगा, क्यू का वेट ज्यादा होगा। हाँ, ये जरूर होगा कि अर्थ पे अगर उसका वेट जो है वो मार्स पे जाके कम हो जाएगा, मास को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेट कम हो जाएगा। लेकिन वो इस सिचुएशन में आपसे ये पूछ ही नहीं रहे, वो आपसे पूछ रहे हैं कि एक मास of the object on earth and the mass of the object on Mars, उन दोनों में आपको डिफरेंशिएशन करने को कह रहे हैं। तो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कि फाइनली आई थिंक अ क्वेश्चन रिलेटेड टू मोशन। अच्छा जी, the object falling towards the earth is falling towards the surface of the earth. The object is falling at terminal velocity. Which statement is correct? There is air resistance and the acceleration of the object is negative. There is air resistance and the acceleration of the object is 0. There is no air resistance and the acceleration of the object is negative. There is no air resistance and the acceleration of the object is 0. अच्छा, ये क्वेश्चन करने के लिए ना आप लोग प्लीज एक चीज को अंडरस्टैंड कर लें कि टर्मिनल वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या। मैं हर क्वेश्चन के साथ ही एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन ये पहली दफा आया है अभी इस क्वेश्चन में, तो आपको हम बताएं और आप अंडरस्टैंड करना शुरू कर दें। इतनी दफा इंशाल्लाह रिपीट होगा कि आप लोग को याद हो जाएगा। एक तो बात ये कि अक्सर क्वेश्चंस में आपको बताया जाता है कि टेक एयर रेजिस्टेंस एज नेग्लिजिबल, ठीक है, वहां तो एयर रेजिस्टेंस 0 हो सकती है, मगर इस सिनेरियो में जब एक ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। एयर रेजिस्टेंस आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप कि जब भी किसी चीज की मोशन होती है तो उसके अगेंस्ट कोई अपोजिंग फोर्स एक्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन। तो ये एयर रेजिस्टेंस तो आपकी एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शंस तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन हम फिर भी इस पूरी जो सिनेरियो है या पूरा जो केस है उसको समझते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है जी? ये एक ऑब्जेक्ट है O that is falling towards the surface of the earth, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही है which is the weight
of the object, ठीक है, and it is acting in the downwards direction. ये नीचे जाता है जाता है जाता है, यहाँ पर पहुंचता है थोड़ा नीचे, और फिर उसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स जो कि एयर रेजिस्टेंस है वो एक्ट करना शुरू करती है, ठीक है जी. एयर रेजिस्टेंस इज अ फॉर्म ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है जी. फिर क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो ऑब्जेक्ट O है उस पे जो एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है और उस पे जो वेट एक्ट कर रहा है वो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं. जब ये सिचुएशन अराइज होती है कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज बीन बैलेंस्ड बाय एयर रेजिस्टेंस, तो हम कहते हैं कि जी टर्मिनल वेलोसिटी हैज बीन रीच्ड, ठीक है जी. तो एक ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा था, एक खासी स्पीड से आ रहा था, एक्सेलरेट कर रहा था, यहाँ एक्सेलरेट कर रहा था, यहाँ पे जब उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस एक्ट करना शुरू हुई, ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकेंड स्टेप था, तो उसकी एक्सेलरेशन स्लो डाउन हुई, एक्सेलरेशन लेस हुई, और फिर एक ऐसा टाइम आया जब वेट और एयर रेजिस्टेंस ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया. जब वो बैलेंस हो गए तो रिजल्टेंट फोर्स जो आपका है, या तो प्लीज एक्सक्यूज द राइटिंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट. अभी मुझे आदत नहीं हुई है विद दिस टैबलेट, और इस पे लिखने की आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक आदत हो जाएगी, पर तब तक आप ये थोड़ी सी मेरी गंदी हैंड राइटिंग बर्दाश्त कर लो, ठीक है. तो अच्छा जी, जो रिजल्टेंट फोर्स अभी टर्मिनल वेलोसिटी है उस पर जीरो होता है क्योंकि वेट हैज बीन बैलेंस्ड बाय एयर रेजिस्टेंस, तो टर्मिनल वेलोसिटी इज जीरो. हमने ये वाला एक ऐसा क्वेश्चन पीछे वेक्टर्स एडिशन में भी किया था जिसमें मैंने आपको टर्मिनल वेलोसिटी की एक्सप्लेनेशन दी थी. तो अगर अब आपको टर्मिनल वेलोसिटी समझ आ गई हो और आप एक ऑप्शंस देखें तो आप देखेंगे कि एयर रेजिस्टेंस इज देयर एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव. नहीं जी, नेगेटिव तो एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है ना, लेकिन एयर रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करती है और एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जीरो है. मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगी तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगी. उसकी वजह ये है कि फोर्स इज इक्वल टू ma, एक फॉर्मूला है जिसे आप आगे जाके पढ़ेंगे. तो एनी फोर्स with any mass multiplied by zero is going to yield an answer that is also zero. यानी फोर्स अगर जीरो है तो anything being multiplied or divided by zero would yield zero, ठीक है. तो इस वजह से यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जीरो है, नेगेटिव नहीं है. और ये दो ऑप्शंस इसलिए गलत हैं क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस एग्जिस्ट ही नहीं करती. एयर रेजिस्टेंस एग्जिस्ट कर रही है, इट इज जस्ट बीइंग बैलेंस्ड बाय द वेट, ठीक हो गया जी. तो अगर आपको ये वाली बात समझ आ गई है तो एक बहुत बड़ा पोर्शन, एक बहुत बड़ा चंक ऑफ मोशन और उसके क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे, ठीक है. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. और चलो इरेज हम बाद में कर लेंगे. लेट्स गो टू द क्वेश्चन. Okay, question 4 states that the graph represents the motion of a vehicle. What is the distance traveled by the vehicle in 400 seconds? Okay, अब ये जो speed time graph होता है उसमें जो आपका gradient होता है वो represent करता है acceleration. ये बात भी आप लोगों को पता ही होगी, और नहीं पता तो इस बात को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लीजिए. और स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द ग्रेडियंट होता है ये वाला, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है डिस्टेंस को, ठीक है जी. तो जब वो स्पीड टाइम ग्राफ देते हैं और आपसे पूछते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है, तो आपको एरिया अंडर द ग्राफ देखना होता है. यहाँ पे उन्होंने 400 सेकेंड्स कह दिया, यानी ये सारा एरिया 0 से 400 तक हमारा
जो है वो एरिया अंडर द ग्राफ बनता है। ये अगर आप देखो यहाँ तक इसको 400 से लाइन खींचो तो आपके पास एक ट्रायंगल बन गई है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें 400 आपका बेस है और 20 आपकी हाइट है। तो अगर आप एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाइए तो आपको पता है कि वो हाफ बेस इंटू हाइट होता है। बेस हमारा है जी 400 और हाइट हमारी है जी 20। तो अगर अब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 8000 divided by 2 and that would be 4000 meters। ठीक हो गया जी, ये आंसर है। तो आपका जो आंसर है वो सी है। ठीक है, आप लोगों को आई होप समझ आ गई हो। अच्छा, एक और बात, जो हम स्पीड टाइम ग्राफ क्योंकि कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जब भी स्पीड टाइम ग्राफ का क्वेश्चन हो काइंडली यूनिट्स जरूर देख लिया करें। बाज़ औक़ात यहाँ पे यूनिट्स जो है वो मिनट्स में हो जाएंगे या आवर्स में हो जाएंगे, तो उनको सेकेंड्स में चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पीड आपकी मिनट मीटर पर सेकेंड में आ रही है। अगर यहाँ पर भी किलोमीटर पर आवर में आ रही हो तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना बहुत जरूरी है। तो यूनिट्स के ऊपर प्लीज खास बच्चों ध्यान दो, ताकि अच्छा भला क्वेश्चन जो है आपका गलत ना हो। इतनी एफर्ट भी करो और फिर क्वेश्चन गलत हो जाए तो बड़ा अफसोस होता है, सीरियसली। तो प्लीज इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो एंड इंशाल्लाह आप लोग अपने मार्क्स लूज नहीं करोगे। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है जो कि फिर स्पीड टाइम ग्राफ का है। द स्पीड टाइम ग्राफ शोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाउ फार डज द ऑब्जेक्ट ट्रेवल एट कांस्टेंट स्पीड। फिर हाउ फार डज द ऑब्जेक्ट ट्रेवल है, यानी आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और भी है, हाउ फार द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स एट कांस्टेंट स्पीड। तो हमें पहले ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कांस्टेंट स्पीड इस ग्राफ में कहाँ है। ठीक है, अच्छा फिर बता रही हूँ, यूनिट्स का ध्यान करो, मीटर पर सेकेंड है और टाइम सेकेंड्स में, इसका मतलब है यूनिट्स बिल्कुल ठीक है। और फिर आपको ये बता रही हूँ कि ये जो ग्रेडियंट होता है ये एक्सेलरेशन शो करता है और एरिया अंडर द ग्राफ डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर उन्होंने आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि कांस्टेंट स्पीड जहां है वहां पर डिस्टेंस निकालिए। अगर हम ग्राफ को देखें तो हमें पता है कि स्पीड टाइम ग्राफ में ये कांस्टेंट स्पीड से ये कांस्टेंटली एक्सेलरेशन हो रही है, ये कांस्टेंट डिसेलरेशन हो रही है। और जब स्ट्रेट लाइन हो रहा हो तो इसका मतलब है कोई एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन जो है वो इस केस में 0 है और जो आपकी बॉडी मूव कर रही है वो कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रही है। स्ट्रेट लाइन यही रिप्रेजेंट करती है। तो चूंकि उन्होंने आपसे पूरी जर्नी का नहीं पूछा हुआ है, उन्होंने आपसे सिर्फ उस जगह का पूछा है जहां स्पीड कांस्टेंट है, तो आप यहाँ पर, इन्होंने ऑलरेडी आपको लाइंस लगा के भी दी है, आप यहाँ 2 लाइंस लगा लेंगे यूजिंग अ रूलर प्लीज, ताकि स्ट्रेट लाइंस लगे, यू नो आपका क्या है। तो what you are getting is a rectangle sort of, ठीक है। तो अब हम अगर इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि डिस्टेंस कितना मूव हुआ है when the object or the body is moving at a constant speed। देखो वहां पर ट्रायंगल बन रहा था तो हमने ट्रायंगल का एरिया लगा दिया था, यहाँ पर रेक्टेंगल है तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाएंगे, जो कि होता है लेंथ इंटू विड्थ। अब जी लेंथ क्या है, लेंथ है जी 5, ठीक है, और विड्थ आपकी क्या है, विड्थ है जी 15 माइनस 5, दैट इज गोइंग टू गिव यू 10, ठीक है जी। तो जब आप 5 इंटू 10 करेंगे that you are going to get is 50 meters। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज कीप एन आई ऑन द यूनिट्स। तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन बी है।
ठीक है, इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी, है ना। अच्छा जी, अगले क्वेश्चन पे जब हम चलेंगे तो यहाँ पर क्या कहते हैं जी, 4 objects are moving in a straight line. The table shows the distance moved by each object in each second of its motion. So which object is moving with constant non-zero acceleration? ठीक है, यानी एक्सेलरेशन को नॉन जीरो होना चाहिए, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब ये है अगर आप ये एक टेबल बना लो, ठीक है, यहाँ पे आप टाइम ले लो और यहाँ पे आप एक्सेलरेशन ले लो, तो 1 मिनट में अगर 2 की एक्सेलरेशन है तो 2 मिनट्स में 4 की होनी चाहिए, 3 मिनट्स में 6 की होनी चाहिए और 4 मिनट में 8 की होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी एवरी सेकेंड या मिनट आपकी एक जैसी एक्सेलरेशन हो रही है, टू 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 की एक्सेलरेशन हो रही है। ये ऐसा नहीं हो रहा कि काफी गंदी ड्राइंग हो गई, बट एनीवेज 1 सेकेंड 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड, यहाँ पे तो आपकी एक्सेलरेशन 2 थी और यहाँ पे आपकी एक्सेलरेशन 5 हो गई और यहाँ पर आपकी एक्सेलरेशन 6 हो गई, तो दिस इज नॉट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ये है, ठीक है, जिसमें हर गुजरते मिनट या सेकंड के साथ एक जैसा चेंज इन एक्सेलरेशन आ रहा है ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर हम ये सारे वैल्यूज देखें तो जो फर्स्ट बॉडी है वो पहले 5 के डिस्टेंस मूव कर रही थी एक सेकंड में, फिर उसने सेकंड में फिर 5 का डिस्टेंस मूव किया, थर्ड सेकंड में फिर 5 का किया और फोर्थ सेकंड में फिर 5 का किया। तो यहाँ टाइम और डिस्टेंस बिल्कुल कांस्टेंट आ रहे हैं, तो ए जो है उसमें एक्सेलरेशन तो हो ही नहीं रही, ये तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है ना, स्पीड तो चेंज ही नहीं हो रही, ये तो कांस्टेंट स्पीड है। अगर आप बी देखें तो पहले वो 5 था, एक सेकंड के बाद वो 6 हो गया, फिर एक सेकंड के बाद वो 7 हो गया और फिर वो 8 हो गया। अब यहाँ जो मैंने आपको टाइम और एक्सेलरेशन बताया था, इसी को सिनेरियो को डिस्टेंस और एक्सेलरेशन से अगर आप कर लें, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है और बिल्कुल सही चेंज हो रहा है। +1 का यहाँ पर जंप लग रहा है आफ्टर एवरी 1 सेकेंड। So this is what we call constant acceleration. ठीक हो गया जी, तो ये हमारा आंसर है करेक्ट। मगर मैं आपको बाकियों का भी बता दूं कि देखो यहाँ पे 5 और फिर 7 है, यानी +2 की एक्सेलरेशन है। ठीक है, और 7 से 10 चले गए तो यहाँ पे +3 की है, और 10 से फिर 14 गए तो +4 की है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 3 4 की हो रही है, ये कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, उन्होंने आपसे कहा है कांस्टेंट, इट हैज टू बी कांस्टेंट नीचे। और फिर अगर आप डी में देखें तो डी में आपको 5 +3 की मिल रही है, फिर +6 की मिल रही है और फिर आगे एंड सो ऑन, तो यहीं पर काम गड़बड़ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 में द करेक्ट आंसर इज बी, इसमें हर टाइम जब एक सेकेंड चेंज होता है तो +1 का डिस्टेंस कवर हो जाता है। और आपको पता है ना कि स्पीड जो है उसका फॉर्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ये सब सिनेरियोज लगाएंगे तो यही एक ऑप्शन है जिसमें कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन हो रही है। ठीक हो गया जी, आई होप यू गॉट द आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। अच्छा जी, 7th क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। यहाँ पे जी वो कहता है द डायग्राम्स शो स्पीड टाइम ग्राफ फॉर 4 डिफरेंट बॉडीज मूविंग फॉर 6 seconds.
Which body traveled the least distance? अच्छा जी, स्पीड टाइम ग्राफ्स हैं और आपको 4 डिफरेंट बॉडीज का बता रहे हैं, 6 सेकेंड्स में मूव की हैं और विच बॉडी ट्रेवल्ड द लीस्ट डिस्टेंस, ठीक है। अगर अब आपको याद हो गया हो मेरे बार बार बताने से, तो डिस्टेंस द एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स यू द डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन ए में देखें तो आपके पास ये एक एरिया अंडर द ग्राफ 0 से 6 सेकेंड्स में हमने क्योंकि करना है, तो आपके पास एक ट्राइंगल आ रही है। अगर आप उसका एरिया निकालते हो विद दिस फॉर्मूला, तो आपका आंसर आएगा, बेस इसकी 6 है जी और ये 8 है, तो 48/2 एंड यू विल गेट एन आंसर ऑफ 24, ठीक है। हाँ, अगर आप इस केस में देखें तो आपके पास दो एरिया अंडर द ग्राफ बन रहे हैं, एक ये और एक ये एक बड़ी ट्रायंगल है, ये एक छोटी ट्रायंगल है, तो हम दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल लेते हैं for triangle 1 and this is triangle 2, ठीक है जी। बेस ट्रायंगल 1 की है 0 to 4, तो बेस 4 की है और हाइट उसके पास 8 की है, तो आ गया जी 4 32/2, the answer would be 16, ठीक है जी। और सेकंड का निकालें हम, तो हमें पता चल रहा है कि इसका बेस जो है 4 to 6 है, यानी 2। ये हमने पीछे लेंथ और टाइम के क्वेश्चंस करते हुए ये सब क्वेश्चंस किए हैं, तो 6 - 4 वुड बी 2, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वहां से जाके पीछे जाके देख लो, ठीक है। और इस ट्राइंगल की हाइट जो है जी वो 4 बताई जा रही है, तो 4 2s are 8 and 8/2 would be 4, तो 16 + 4 जो है वो सेकेंड टाइम एरिया आएगा, तो दैट वुड बी 20, ठीक है जी। इस बॉडी ने ये एरिया कवर किया था जो कि 16 था और ये एरिया क्या कवर किया था जो कि 4 था, तो इन दोनों को ऐड करके 20 मीटर्स आ गया है, ठीक है जी। यहाँ पर बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है और ये सारा एरिया जो है अंडर द ग्राफ ये हमें कंसिडर करना पड़ेगा अगर हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो। और ये चूंकि रेक्टेंगल बन रहा है और रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ इनटू विड्थ होता है। लेंथ जनाब इसकी 8 है, विड्थ इसकी 6 है, तो ये आंसर आएगा आपका 48। अगर आप यहाँ देखो इसमें, तो ये लाइन है, आपको यहाँ पे शायद इतनी क्लियर नजर ना आ रही हो, मगर असल में ये लाइन है और ये है जी एरिया अंडर दैट लाइन। ये भी एक रेक्टेंगल बना रहा है, तो रेक्टेंगल का जो एरिया है वो वुड बी लेंथ इनटू विड्थ एंड इसकी लेंथ है जी 4 और इसकी विड्थ है जी 6, 24 मीटर्स आंसर आ जाएगा। अगर उन्होंने आपसे पूछा है कि लीस्ट डिस्टेंस किसने ट्रेवल किया है, इस वाले ने जी 24 मीटर्स ट्रेवल किया है, इस वाले ने 20 मीटर्स ट्रेवल किया है, इस वाले ने 48 ट्रेवल किया और इसने 24 ट्रेवल किया, तो लीस्ट डिस्टेंस जनाब आपका बी ने ट्रेवल किया है विच इज 20 मीटर्स, ठीक है जी। अच्छा जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, मेरा ख्याल ये था कि हम इस सेक्शन की 2 वीडियोस बनाएंगे क्योंकि कंटेंट इसमें काफ़ी ज़्यादा है और एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। मगर अभी तो मैं ये देख रही हूँ कि मेरे ख्याल से हमें 3 से शायद 4 वीडियोस बनानी पड़े, क्योंकि मैं वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं करना चाह रही, सिंस उसको लोड करने में फिर काफ़ी इश्यूज हो जाते हैं। पाकिस्तान में इंटरनेट के हालात कुछ इतने अच्छे तो हैं नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि इसकी तो हमें 3-4 में भी पार्ट्स बनाने पड़े। चलो लेट्स सी, 40-45 मिनट्स की एक वीडियो कर लेते हैं और फिर इंशाल्लाह देखते हैं कितनी वीडियोस बनती हैं।
अच्छा जी, 8th क्वेश्चन क्या कहता है, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वेट। फिर मास और वेट का क्वेश्चन आ गया, आई डोंट नो व्हाट इट हैज टू डू विद मोशन बट स्टिल। अच्छा जी, कहता है मास इज द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन वेट। ओके, मास इज द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन वेट। मैग्नेटिक फील्ड का तो जी कोई लेना देना ही नहीं है, इसको तो कैंसिल कर दें। वेट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन अ मास। वेट इज द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द मास। तो ये दोनों तो जी गलत हो गए आपके, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का तो कोई लेना ही देना ही नहीं है। और यहाँ पर mass is not the effect of gravitational field on weight, weight is the effect of gravitational field on mass। ये तो आपने जब weight की definition याद की होगी तो आपको वो भी पता होगा कि mass जो है is the amount of matter contained in the body and weight is the amount of force uh, acting on the body in a gravitational field। तो C जो है उस definition को right प्रूव करता है, इसलिए सी इज द आंसर। अच्छा जी, 9th क्वेश्चन कहता है अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, द टेबल शोज द रीडिंग्स फ्रॉम इट्स स्पीडोमीटर एवरी 10 सेकेंड्स, यानी 10 सेकेंड्स का इंटरवल है हर रीडिंग के बीच में। विच रो डिस्क्राइब्स द कार्स मोशन इन द फर्स्ट 30 सेकेंड्स एंड देन इन द लास्ट 30 सेकेंड्स। अच्छा जी, फर्स्ट 30 सेकेंड्स में क्या हो रहा है, टाइम इंटरवल तो बिल्कुल कांस्टेंट है, 10 सेकेंड्स का टाइम इंटरवल है। तो स्पीड क्या है, पहले 4 थी, फिर 8 हुई और फिर 12 हो गई इन द फर्स्ट 3 सेकेंड्स। तो 4 यहाँ पे +4 का जंप लग रहा है ना। तो +4 का जंप लग रहा है, हर चीज जो आपकी है वो कांस्टेंट रह रही है। तो यहाँ पर जो स्पीड आपकी है वो होगी, ये एक नॉन जीरो एक्सेलरेशन है, ठीक है, यानी सब 4 4 4 नहीं है, 4 का इंटरवल है सब में। नॉन जीरो वुड हैव बीन 4 4 एंड 4, ठीक है। तो ये स्पीड जो है ये कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है जी। तो ये ऑप्शन हमारे पास कहाँ आ रहा है, ये है जी नॉन जीरो एक्सेलरेशन और ये है नॉन जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन के दोनों ऑप्शंस हमारे पास गलत हैं, क्योंकि जीरो एक्सेलरेशन होती है यहाँ पर इस केस में कि अगर सारी वैल्यूज 4 होती है, यहाँ तो 4 4 का जंप लग रहा है, ठीक है। और मोशन ड्यूरिंग लास्ट 30 सेकेंड्स, लास्ट 30 सेकेंड्स में देखो आप, ये हो गया है कि 12 12 12, तो यानी ये एक्सेलरेशन कोई भी नहीं हो रही और गाड़ी जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, ठीक है, एक्सेलरेशन है ही नहीं कोई। तो ये वाला जो 9th है उसमें ये एट रेस्ट हरगिज नहीं है, ठीक है, स्पीड उसकी है, स्पीड उसकी जीरो नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है कि ये एक नॉन जीरो एक्सेलरेशन है और ये जी एक कांस्टेंट स्पीड की एग्जांपल है जहां एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है जी। ओके जी, 10th, which property of an object is consequence of gravitational field acting on it। तो अभी हमने पीछे भी पढ़ा है कि weight is the effect of gravitational force on any mass, ठीक है, on which it is acting। तो density तो नहीं होती, mass भी नहीं होता, वॉल्यूम भी नहीं होता और ये d होता है। mass की मैंने आपको definition बताई है कि mass is the amount of matter contained in the body and something that resists the change in velocity of the body, ठीक है, ये दोनों आप यूज कर सकते हो definitions। ओके जी, 11th क्वेश्चन क्या कहता है, the velocity time graph of a car is shown, what is the distance traveled by the car in 35 seconds। 35 seconds is the whole distance, ठीक है जी, और velocity और time, तो ये वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ है वो ऑलमोस्ट इज लाइक अ स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। और इसमें भी ये जो आपका ग्रेडियंट है ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और द एरिया अंडर द ग्राफ विल बी रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस। अगर आप इसको देखो तो यहाँ पर आपके 3 शेप्स बन सकते हैं, एक ये ट्रायंगल, एक ये रेक्टेंगल
फिर ये एक ट्रायंगल और ये रेक्टेंगल. दिस इज शेप 1, दिस इज शेप 2, दिस इज शेप 3 एंड दिस इज शेप 4. अगर हम ये सारे एरियाज निकाल लेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 35 सेकेंड्स आ जाएगा. ठीक है, तो शेप 1 का अगर हम करें तो इट्स अ ट्रायंगल, तो हाफ बेस इनटू हाइट होगा. बेस इसका जी 10 है, हाइट इसकी 10 है. 100 by 2 and it would be 50. यहाँ इसको लिख देते हैं. पहला एरिया जो हमारे पास आया वो 50 है. सेकंड जो है जी वो रेक्टेंगल है चूंकि, तो लेंथ इनटू विड्थ होगी. इसकी लेंथ है 25 minus 10 and 25 minus 10 would be sorry 15 and इसकी जो ये है लेंथ वो दैट वुड बी 10. दिस वुड बी 150. ठीक है जी, यहाँ पे कर दीजिए 150. थर्ड शेप है हमारी वो फिर एक ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल का बेस अगर आप देखो तो 35 minus 25 है, तो 35 minus 25 would be 10. ठीक है, बेस हमारी जी 10 है और इस ट्रायंगल की जो हाइट है वो 20 minus 10 है, तो 10 ही हो गया. तो that would be again 50. ठीक है जी, तीसरी वैल्यू आ गई हमारे पास. और अब हम फोर्थ शेप निकालते हैं जो कि अगेन इज अ स्क्वायर और अ रेक्टेंगल. तो जी इसकी जो लेंथ है वो आती है हमारे पास 10 और जो इसकी विड्थ है वो 35 minus 25 है, यानी 10 तो 100. ठीक है, तो हमारे पास सब शेप्स का एरिया आ गया क्योंकि ये रेगुलरली शेप ऑब्जेक्ट बन रहा है. तो ये आप इस तरह से एक शेप में नहीं निकाल सकते जैसे पीछे क्वेश्चंस थे कि वो एक ही ट्रायंगल या एक ही स्क्वायर या एक ही रेक्टेंगल बन रहा था. इसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा. दिस इज अ कंपाउंड शेप. ठीक है, तो इन चारों वैल्यूज को जब आप ऐड करते हैं तो आपके पास आता है 350. एक दफा मैं फिर कर 100 and 100, 200 and 350. हाँ जी, 350 meters. So here is your answer. Option B will be your answer. ठीक है जी. अच्छा जी, a man stands next to a railway track. यहाँ पे बंदा खड़ा है. The train is traveling at 40 meter per second. Speed बताई हुई है. Takes 2 seconds to pass the man. What is the length of the train? Length of the train क्या होगी? Length of the train would be the distance this train covers while passing this man. ये जब तक ये ट्रेन समझे यहाँ आगे निकल जाए, तो ये जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है यहाँ से यहाँ तक पहुंची है, दिस वुड बी द लेंथ ऑफ द ट्रेन. ठीक है ना, तो ये जब इससे पास करेगी तो वो डिस्टेंस ही होगा ना, जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है while it passed besides this man. और जो डिस्टेंस है आपको स्पीड दी गई है, आपको टाइम दिया गया है, और स्पीड, डिस्टेंस और टाइम जिस इक्वेशन से कनेक्ट होते हैं वो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम की इक्वेशन होती है. ठीक है, स्पीड आपको पता है कि 4 मीटर पर सेकेंड है, डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, टाइम 2 सेकेंड्स है. तो 4 into 2 would be the distance which is 8 meters. oh sorry, यहाँ पे 40 था, sorry. तो 40 के साथ 2 का 80 आएगा आंसर. ठीक है जी, ये डी ऑप्शन है. जब भी कभी आपसे ये इस तरह का सिनेरियो एक्सपेक्ट किया जा रहा हो कि एक बंदा जी यहाँ खड़ा है, एक गाड़ी, एक ट्रेन, एक एरोप्लेन, एक बोट उसके पास से गुजर रही है और आप इस बोट, एरोप्लेन, ट्रेन का लेंथ बताएं, तो इसका मतलब ये है कि वो जितना पूरा जो लेंथ उसके पास से गुजर के यहाँ तक जाएगी
वो उसका डिस्टेंस कवर्ड होगा और आप इस वाले फॉर्मूला से उसकी लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह के काफी सिनेरियोज मेरे ख्याल से एक दो क्वेश्चंस आगे भी हैं, तो अगर आप एक दफा इस चीज को अंडरस्टैंड कर लो, ये आप कियोस में ना आ जाओ कि यहाँ स्पीड दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, लेंथ कैसे निकालते हैं, यहाँ पर लेंथ नहीं निकाल सकता मैं, यहाँ पर कोई स्केल भी नहीं दिया गया, तो ये जो स्पीड और टाइम है बेसिकली यही आपका स्केल। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। what which quantity is equal to acceleration? okay, अब ये मैंने आपको बहुत दफा बताया कि एक्सेलरेशन जो होती है वो ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ होती है। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो स्पीड देता है। ठीक है, वो एक्सेलरेशन नहीं देता। एरिया अंडर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ भी नहीं देता, और एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ डिस्टेंस देता है आपको। तो यही आपका सही आंसर है। मैं इतनी दफा देखो रिपीट कर रही हूँ, आई होप आप लोगों को अब तक कम से कम ये दिमाग में बैठना शुरू हो गया। ठीक है, तो 16th क्वेश्चन क्या कहता है, ऑन द मून ऑल ऑब्जेक्ट्स fall with the same acceleration. Which statement explain that? Same acceleration से fall करने का मतलब क्या है? Same acceleration से fall करने का मतलब ये है कि कोई उनको आगे से resistance face ही नहीं करनी पड़ी जिसकी वजह से उनकी acceleration कम हो। On earth when anything is falling down, तो पहले तो weight सिर्फ नीचे की डायरेक्शन में ऐड कर रहा होता है और फिर एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन ऐड करना शुरू कर देती है। ठीक है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन स्लो डाउन हो जाती है और सेम नहीं रहती, और एक टाइम पे टर्मिनल वेलोसिटी में एक्सेलरेशन 0 भी हो जाती है। ठीक है, तो जब वहां पे मून पे कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है और कोई अपोजिंग फोर्स ही नहीं है, एयर ही नहीं है कि वो एक्ट कर सके, तो उसकी रीजन एक ही हो सकती है, ये तो हो ही नहीं सकता कि ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव द सेम वेट, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ना, चाहे वो हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से कम है मगर स्टिल इट्स देयर, तो वेट सब चीजों का इक्वल हो जाए ये नहीं हो सकता। ठीक है, द मून हैज अ स्मॉलर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ देन द अर्थ, ये बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन से कोई लेना देना नहीं। ठीक है ना, उसका ताल्लुक तो वेट से है। ठीक है, सी कहता है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। ये बात बिल्कुल ठीक है कि वेट मास से प्रोपोर्शनल है, लेकिन उसका कोई ताल्लुक एक्सेलरेशन से नहीं है। ठीक है, हमें एक ऐसी स्टेटमेंट चाहिए जो इस फिनोमेना को एक्सप्लेन कर रही हो कि सारे ऑब्जेक्ट मून पे सेम एक्सेलरेशन से फॉल करते हैं। उसकी वजह ये है कि द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है नहीं, ये भी वजह नहीं है। तो फिर जब हमने ये सब सिनेरियोज देखे हैं तो हमें पता चला है कि सी इज द ओनली सिनेरियो जो कि करेक्ट है, बाकी सारे सिनेरियोज जो हैं वो गलत हैं। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, और बाकी सारे सिनेरियोज हमने डिस्कस कर लिए हैं। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट किस तरह मास से है, W इज इक्वल टू mg, तो यहाँ आपको पता चल रहा है कि वेट जो है वो मास के साथ और ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ प्रोपोर्शनल है। कि मेरे ख्याल से ये 16th क्वेश्चन में अगर ज़्यादा टाइम ना लगे तो ये वाला इस वीडियो का इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर आगे चलते हैं इंशाल्लाह। A speed time graph is used to describe the motion of an object. Which quantities are calculated under the gradient of the graph and under the area of the graph? ठीक है, तो gradient of the graph जो कि speed time graph का है, not distance time graph, वो आपको एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, और डिस्टेंस ट्रैवल तो देता ही नहीं है, टाइम भी नहीं देता, तो ये ऑप्शंस तो गलत हो गए, इनको एलिमिनेट कर दिया हमने। और एरिया अंडर द ग्राफ हमें डिस्टेंस ट्रैवल देता है, तो ये ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। ठीक है जी, ये तो हमने कितनी दफा डिस्कस किया है ना यार। अच्छा, 17th क्वेश्चन क्या कहता है, अ स्काई डाइवर जंप्स फ्रॉम एन एरोप्लेन
and falls towards the earth. Which statement is correct when the skydiver has reached terminal velocity? अच्छा जी, मैं टर्मिनल वेलोसिटी का फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसको सुन लो. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि ऊपर से नीचे गिर रहा है. पहले जो उस पे फोर्स एक्ट कर रही है वो इस ऑब्जेक्ट का वेट एक्ट कर रहा है. ठीक है जी. ऑब्जेक्ट स्पीड अप कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है. ठीक है जी, और नीचे जा रहा है. ठीक है जी. और ये वेट है उसका जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया और बड़ा नहीं हुआ, सिर्फ ड्राइंग में बड़ा हो गया. यहाँ पे जब वो पहुंचा कुछ देर बाद तो एक अपोजिंग फोर्स उस पर एक्ट करना शुरू हुई जो कि एयर रेजिस्टेंस थी. ये एक्ट होने से क्या हुआ कि उसकी एक्सेलरेशन जो थी वो लेस हो गई. ठीक है, अब वो थोड़ी कम स्पीड से नीचे जा रहा है. और फिर एक पॉइंट थोड़ी देर बाद ही रीच हुआ जब जो उसके ऊपर वेट एक्ट कर रहा था यहां पर इस ऑब्जेक्ट पे, उसको बैलेंस कर दिया एयर रेजिस्टेंस ने, और रिजल्टेंट फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही थी वो जीरो हो गई. तो फिर क्या हुआ, एक्सेलरेशन भी जीरो हो गई. ठीक है, यही वो पॉइंट है जहां पे हम कहते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी हैज बीन रीच्ड. ठीक है, यानी जहां वेट और एयर रेजिस्टेंस बैलेंस हो जाए, इसकी वजह से रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाए और एक्सेलरेशन जीरो हो जाए तो टर्मिनल वेलोसिटी रीच हो जाती है. ठीक है जी. तो इस सिनेरियो को समझ के जब हम ऑप्शंस देखते हैं तो स्काई डाइवर की स्पीड डिक्रीज हो रही है. द स्काई डाइवर स्पीड इज इंक्रीजिंग. द स्काई डाइवर इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड. द स्काई डाइवर स्पीड इज जीरो. अब चूंकि एक्सेलरेशन जीरो हो चुकी है तो इस वजह से हमारा आंसर सी है. जब एक्सेलरेशन जीरो हुई है तो इसका मतलब है कि जो स्काई डाइवर है वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है. देखो कितना आसान हो गया ना इसको करना. यहाँ पे उसकी स्पीड अब डिक्रीज या इंक्रीज नहीं हो रही या जीरो नहीं हो रही. एक्सेलरेशन जरूर जीरो हुई है, स्पीड जीरो नहीं हुई. स्पीड डिक्रीज और इंक्रीज नहीं हो रही. स्पीड टर्मिनल वेलोसिटी पे कांस्टेंट होती है क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है. इसके बाद पैराशूट खुलता है और पैराशूट का मकसद ये होता है कि एयर रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा की जाए ताकि वो स्लो स्पीड से स्काई डाइवर या जो भी चीज नीचे आ रही है वो स्लो स्पीड से आए, वो बहुत ज्यादा तेज स्पीड से ना आ जाए. तो इस वजह से पैराशूट खोला जाता है. फिर वो सिनेरियो बिल्कुल फर्क हो जाता है और इंशाल्लाह आगे जाके करेंगे. अभी के लिए 17th क्वेश्चन पे हम रोकते हैं और इंशाल्लाह पार्ट बी में हम मिलते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन 18th. और बच्चों प्लीज अगर आपको के लिए ये वीडियो ये टॉपिकल्स के सॉल्यूशंस हेल्पफुल थे तो प्लीज रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स एंड सी यू अगेन इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज.